Hello Standard 9th, welcome to SS class, and we have already started public opinion in democracy, media of public opinion in democracy and print media. Now we are continuing with electronic media. Now print media is basically has failed to create awareness or public opinion due to low literacy rate in many regions. So electronic media is a very important in today's day-to-day life, and it is more important or effective in the areas where there is lower literacy rate. Now audio-visual medium like radio, television, cinemas are very important in cultivating public opinion. So it is seen that radio and television are considered far more important than newspapers and periodicals. तो ऐसा माना गया है या ऐसा देखा गया है कि टेलीविज़न और रेडियो से वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज़ कम्पेयर टू न्यूज़पेपर्स या प्रिंट मीडिया वी कैन से. Live telecast of incidents occurring nationally as well as internationally can be easily made available through the mediums of radio and television. We all know that radio and television are very important means of telecasting things which are happening nationally and at international level, and these are the only mediums through which public opinion can be created. For how can we do this? By creating serials, dramas, movies, and which can help portray socio-economy as well as other problems like untouchability, dowry, exploitation and poverty in an entertaining manner. तो जो हमारे समाज में या हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें कुछ गड़बड़ है या हमारे सामाजिक कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो we can say these are the hindrance in the development of the society, जैसे कि untouchability, dowry system है, exploitation है, poverty है. तो we can present these all things prevailing in our society through entertaining manner. In today's world, apart from television, arrival of spread of internet has helped people to enjoy news. अब टेलीविज़न के अलावा मतलब कि इंटरनेट का यूज़ अभी काफ़ी बढ़ चुका है. लोगों को एन्जॉय इंटरनेट के थ्रू लोग एन्जॉय कर सकते हैं news, serials, dramas and movies sitting comfortably in their homes. आराम से all these media can create an adverse effect, और इससे ये भी होता है कि इसके गलत असर भी देखने को मिलती है. अगर कोई डिस्टॉर्टेड चीज़ आती है, ऑब्सीन चीज़ आती है, वायलेंट इन्फॉर्मेशन होती है, तो इसकी वजह से ये ज़रूरी बन जाता है इन चीज़ों को मॉनिटर करना, इनका ट्रांसमिशन के ऊपर कंट्रोल करना कि जो हार्मफुल कंटेंट है, जो समाज में गलत मैसेज प्रोवाइड कर सकता है, तो ये क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीडियम है, तो इसके ऊपर कंट्रोल करना या इसके ऊपर मॉनिटरिंग रखना बहुत ज़रूरी है. In a democracy, it is desirable that political parties and NGOs protest against various obscene and violent programs telecasted by the electronic media. सो डेमोक्रेटिक नेशन में ये लायबल है कि पॉलिटिकल पार्टीज और एनजीओज प्रोटेस्ट करेंगे अगर इस तरह का कोई वायलेंट प्रोग्राम या कोई ऐसा सीन या कोई ऐसी लैंग्वेज यूज़ हो रही है कोई ऐसे सीरियल के थ्रू या मूवीज़ के थ्रू. तो ये फास्ट मूविंग टेक्नोलॉजिकल एरा है जहाँ पे लोग हमेशा टच में रहते हैं हर एक चीज़ के थ्रू. इंटरनेट और स्मार्ट्स में सेलफोन्स है सबके पास, तो एक्सचेंज ऑफ थॉट बहुत ही फास्ट हो गया है और आइडियाज़ भी बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज़ प्लेइंग अ वाइटल रोल एंड इट इज़ वाइडली यूज्ड for cultivate public opinion. So television, radio, personalized radio, FM plays a special role in cultivating public opinion in modern times. तो आज इन टूडेज टाइम रूमर्स स्प्रेड इंस्टेंट है और एकदम से रूमर्स तो इतनी अफवाहें तो बहुत जल्दी फैलती है एंड इन द एब्सेंस ऑफ फैक्ट्स एंड डिटेल्स. और ये कब होता है जब पूरी तरह से हमें जानकारी नहीं होती, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, डिटेल में हमें नहीं पता होता है, तो और हैंस देयर रिमेन्स अ डेंजर ऑफ फॉल्स पब्लिक. तो इससे हमेशा खतरा बना रहता है कि फॉल्स पब्लिक ओपिनियन क्रिएट होगा, राइट. अब वेरियस टाइप्स ऑफ सर्वेज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हेल्प क्रिएट पब्लिक ओपिनियन. कई सारे ऐसे सर्वे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक जिसकी वजह से पब्लिक ओपिनियन मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हेल्प करती है पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने में और प्रेजेंट किए जाते हैं बेसिकली कब
ये ओपिनियन पोल्स होते हैं जब इलेक्शंस आते हैं तब ऐसा होता है। और ओपिनियन पोल्स हेल्प टू एस्टिमेट द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। तो ओपिनियन पोल्स जो होते हैं इसमें पब्लिक ओपिनियन का जो एस्टिमेशन है डायरेक्शन का वो पता चल जाता है। एंड ओपिनियन पोल्स आर नॉट ऑलवेज ट्रू एंड रिलायबल। कई बार ऐसा होता है कि ओपिनियन पोल्स हमेशा सही नहीं होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज टाइम। बट आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी में लोग और सरकार दोनों ही को बहुत ही पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लोगों के विचार और डिटेल में और उनकी जो टॉक्स है गवर्नमेंट के साथ सिमिलरली हेल्प्स ट्रांसमिट डिटेल्स अबाउट द वेरियस प्लान्स। कई सारी चीज़ें, मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो हर के आने वाले टाइम में गवर्नमेंट क्या प्लान्स बनाने, क्या अचीवमेंट किए गवर्नमेंट ने, लोगों को बताने के लिए ये सारे मीडियाज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रेडियो कैन रीच इन डिस्टेंट एंड रिमोट एरियाज, और रेडियो तो सब जगह पहुंच सकता है। तो बहुत दूर अंदाज जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे ज़्यादा तो वो लोगों को भी पता होता है कि नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है। एंड एज इट इज़ ओनली ऑडियो मीडिया इट हैज़ बीन लेस इफेक्टिव। हालांकि रेडियो में सिर्फ सुनाई देता है तो वो कम इफेक्टिव रहा है एज़ कम्पेयर टू टेलीविज़न। टेलीविज़न प्रोग्राम्स जो होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं नेचर में, और पर व्यूअरशिप जो होती है रेडियो के कंपैरिजन में टेलीविज़न पे ज़्यादा देखने को मिलती है। सो डेमोक्रेसी में ये डिज़ायरेबल है कि पब्लिक ओपिनियन कल्टिवेट हो, और ये सो एज टू कैटर द नीड्स ऑफ द वेलफेयर ऑफ द नेशन, ताकि जो देश के हित के लिए जो चीज़ें करनी चाहिए या जो इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए वो लाया जा सके और देश अच्छे से चल सके। आई होप सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड print media as well as electronic media. Now we are going to start with types of democracy next lecture. Till then, take care. Have a nice day.